all to our webinar program today. Today is a very unique day because you will see host, coordinator and moderator all are women. Thanks to the organizing committee for reposing faith in all of us. We have with us two distinguished personalities. The first resource person for today's deliberation is a very renowned spiritual guru, Swami Radheshyam ji. Pranam Guruji. Ashura. We have also another distinguished personality for the second session. She is Professor Susama Parekh ji, very well known to the members of the philosophy family. She is a professor, Claremont School of Theology and Willamette University, USA. I welcome both of you to this webinar program. We have with us Professor Srinivasan sir and other dignitaries, and I can see Patnaik sir here also. So I welcome, and our distinguished dignitaries. I welcome you all to this webinar program. Today's program will be hosted by Swarnalata Tripathi Madam, truly the better half of Professor Pramod Kumar Das, and Madam Sravani Mishra as our coordinator. I welcome both of you. I have the privilege of introducing Swami Radheshyam ji and Madam Professor Susma Parekh ji. Both of them are going to address on a very important aspect of human existence, that is happiness. Whether we are happy or we are showing to be happy is a $1 million question at the present moment. We are not only externally locked down, we are also internally locked down for various reasons. To have a good health, no doubt, we need a sound mind and an elevated spirit. Both the resource persons of today's evening are going to address on this issue. So without wasting much of your time, I feel privileged to introduce our first resource person, none other than Swami Radheshyam ji, who is staying in Vrindavan, the abode of Lord Krishna, Uttar Pradesh. He is a spiritual guru and gives spiritual discourses all over the country. He beautifully synthesizes spiritual life and practical life, which is the hallmark of his personality. He is closely associated with our founder, Professor Pramod Kumar Das sir. While visiting to Puri, he had delivered one talk in Wisdom Intellectual Forum, Puri in physical mode. He had also taken classes of UG students of philosophy, Nayagarh Autonomous College for 3 days, which was highly appreciated by the students and the faculties. Another distinguished blessing of his personality is that he tries to keep contact with students after his deliberations and try to clear up their doubts. His interest in education and transformation of the young students has made him very popular across the country. Today we are really privileged and blessed to have you, sir, amidst us in the August occasion with a beautiful topic, happiness in life. So I request Swamiji to address the gathering. Swamiji, please. जय जगन्नाथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्यमर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिये। मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सुन संगते पदाकरीश सीमा कृपा कटाक्षी मखेश्वरी क्रियेश्वरी सावधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी परमान शासिनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं विचार करने के लिए कि मनुष्य जन्म से ये प्रसन्नता, ये आनंद हुआ कहाँ, कब, क्यों हमें अपनी प्रसन्नता को दोबारा से खींच कर अपने जीवन में लाया। प्रसन्नता कहीं गई नहीं है, बस हमारे जीवन का जो ढंग है वो सही ना होने के कारण हम परेशान हैं। हमें अपने जीवन में से जो अहम है, अहम वो निकाल दें। अपने जीवन में से जो कमियां हैं वो निकाल दें। कमी क्या है? हम संसार में कुछ करना तो कम चाहते हैं, मगर चाहना, हमारी पाने की इच्छा जरूरत से ज्यादा है। हम अधिकार चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, हमें मान्यता दो। हम पिता हैं, हम पिता के धर्म, अपने पिता होने की पूरा अधिकार पिता का चाहते हैं, मगर पिता होने की जो हमारी ड्यूटी है उससे अब हम थोड़ा थोड़ा च्युत होने लगे। हम अपना जितना वर्क को टाइम देते हैं, अपनी ड्यूटीज को जितना टाइम देते हैं, वो समय अब हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। माताएं हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चों का खाना भी अब नौकरानियां बनाते हैं। आप पैसा लगाना जानते हैं, मगर स्वयं को वहां पर उपस्थित नहीं करेंगे तो जैसा हमारे बच्चे अन्न खाएंगे वैसा ही तो उनका मन बनेगा। जब वो नौकरानी के हाथ का खाना बना खाएंगे, आपके हाथ का जो ममता होती है माँ के खाने में, वो नौकरानी के खाने में नहीं हुआ करती। हम अपने बच्चों को नौकरानियों की आया की गोदी में पालना चाह रहे हैं, तो फिर जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो हमें पैसा तो देने को तैयार हो जाएंगे, मगर अपना समय, एक समय आने पर हम लोग तरसते हैं कि हमारे बच्चे अब हमें समय नहीं देते, हमारे पास बैठते ही। आप जानते हैं, हम इस संसार में जो बीजते हैं वही हमें काटने को मिलता है। अब खेत में गेहूं डालेंगे तो वहां पर चावल नहीं हो सकते,
गेहूं डालेंगे तो गेहूं की उपज वहां पर पैदा होगी। चावल की अगर आप लगाएंगे खेती तो चावल, बबूल लगाकर अगर आप आम पाना चाहेंगे तो वहां आज तक किसी को आम प्राप्त नहीं हुए। आप ये देखिए कि हम चल कैसे रहे हैं, हमारे जीवन का जीने का सलीका कहीं भंग तो नहीं हो रहा। हम मान्यताएं चाहते हैं, मान्यताओं के कार्य हम देखो, अगर हमें आज सरकारी जॉब मिल जाती है, सरकारी सर्विस में हम पहुंच जाते हैं, सरकारी नौकरी करते समय हम ड्यूटी कम से कम देना चाहते, हम अपना टाइम नहीं देते वहां पर। हम बिजनेसमैन हैं तो हम क्या अपने दुनिया में जिस कार व्यवहार में लगे हुए हैं, क्या हम उचित मूल्य के लोगों को सामान दे पा रहे हैं? हमारा जो जीवन है, हर प्रदेश में अगर व्यक्ति व्यवस्थित होता चले जाए, जो जिस वर्ग में है तो उसकी परेशानियां थम जाए। आप जानते हैं आज इतनी कमाल की बात हो रही है, हम जाते हैं पूछते हैं, अरे आपका बच्चा क्या कार्य करता है? महाराज जी जॉब करता है। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? महाराज जी तनख्वाह तो ठीक ठाक है, मगर ये ऊपर की कमाई बहुत अच्छी कर रहा है। आप समझ पाओगे ऊपर की कमाई क्या? रिश्वत, चोरी। आप कितनी शान से बता देते हो ये बात। हम चाहते हैं हमारे पास शांति आ जाए, आनंद आ जाए, मगर क्या शांति के लायक कार्य हम करते हैं? बचपन से हम सीखते हैं झूठ मत बोल, झूठ बोलने का मौका मिले हम छोड़ते हैं। हमें कहते हैं कि चोरी मत करो। अब बताओ, जो अभी आपको उदाहरण दिया कि हमारा बच्चा तनख्वाह तो कम लेता, ऊपर की कमाई अच्छी कर ले, चोरी सरेआम, और हम बताते हुए भी उसमें कोई विचार नहीं कर पाते कि देखो हम कर क्या रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में, व्यवहार में शुद्धता नहीं आएगी, हमारे जीवन में सही रूल फॉलो मत करो। अच्छा, आप भारतवर्ष में अगर आपको कार ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो आप अगर कहो कि हम राइट साइड में ड्राइव करेंगे, रूल क्या है? लेफ्ट साइड, और आपको राइट साइड करेंगे, आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार आप विचारशील लोगों के विचारों को जब जीवन में नहीं अपनाएंगे, अपने मन के मुताबिक चलेंगे, जो हमारा मन करता है हम वैसे ही चलेंगे, रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे ही करेंगे। और गलतियों से बचना है, तरीका क्या है? जो हमें पता चल जाए कि ये कानून, ये मर्यादाएं, ये रूल हमें फॉलो करना। रूल फॉलो करने वाले को कभी कोई परेशानी नहीं होती। एक व्यक्ति गाड़ी लेकर निकला है, उसके पास लाइसेंस भी है, उसके पास गाड़ी के कागज भी हैं, आरसी भी है, पोल्यूशन भी है, तो वो गाड़ी लेकर निकलेगा तो बड़ा निश्चिंत होगा, मेरे पास लाइसेंस भी है, पोल्यूशन भी है, आरसी भी है, पेपर भी पूरे हैं गाड़ी के। आप जाकर मजे से, गाड़ी वाला रोक भी लेगा पुलिस वाला, तो आपके चेहरे पे एक रौनक होगी, कोई डर नहीं होगा। सहज तरीकों से आपको बताया जा रहा है कि आपके जीवन में रौनक आएगी कहां से, प्रसन्नता आएगी कहां से, जब आपके जीने का तरीका सही। मेरे पास पोल्यूशन नहीं है, अब गाड़ी रोक ली जाएगी तो आप घबरा जाओगे, आपको वो फंस गए। क्यों फंस गए? नहीं तो आपको पुलिस वाला रोके, आप पूरे
एकदम उत्साह। आपके चेहरे को देखकर ही पुलिस वाला कहेगा जी आप निकलो, आपने बेल्ट भी लगाई हुई है, सारी आपके पास कार्रवाई जो है हमारी पूरी है। इस मनुष्य जन्म में भी जब आपकी कार्रवाई पूरी है, आप पिता सही हो, आप बेटे सही हो, अपने माँ बाप का पूरा आदर करते हो, अपनी मर्यादाओं में अगर आप कायम हो, तो सबसे बड़ी बात होगी कि आप निश्चिंतता वाला फेस लेकर, आपके चेहरे पर उद्विग्नता नहीं दिखेगी, आपके चेहरे पर कोई ऐसा डर वाला भाव होगा ही नहीं, ना आपके जीवन में परेशानी होगी, ना आपके जीवन में भय होगा। आप बड़े निश्चिंत जीवन जी रहे होगे। जहां से निकलोगे लोग कहेंगे अरे इनका चेहरा देखो कितना सुंदर है। अरे भाई चेहरा सुंदर कैसे हो गया कि आपने व्यर्थ की चर्चाओं को, व्यर्थ के चिंतन को, व्यर्थ के विचारों को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करा। हम देखो अब जिस मोबाइल के द्वारा हम यूज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उस मोबाइल में भी देखो एंटीवायरस डाला जाता है। फालतू की कोई चीज हमारे फोन में ना, और हमारे दिमागों में पता नहीं कितना फालतू का दिमाग घुसा हो। हर व्यक्ति इधर उधर की चर्चाओं में समय व्यतीत करता है, जा जाकर देखता है कहाँ क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है। अपने मतलब की बातों के अलावा किसी बात में जो नहीं घुसता वो किस्मत वाला। वो जितना समय विचारों में बीतता है उसके विचार बड़े सुंदर होते हैं, क्योंकि उसने अपने अंदर कोई नेगेटिव बात जाने नहीं दी। हमें जीवन में शायद इंग्लिश का ए भी नहीं पढ़ना। ए एक्सेप्ट। सिचुएशन जीवन में जैसी भी आ जाए उसे हम एक्सेप्ट, घबराएं नहीं। विपरीत परिस्थितियां किसके जीवन में नहीं आती। आप सब अनुभवी लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या विपरीत परिस्थितियां नहीं आती। एक्सेप्ट करो, उस पर चिंतन करो, बड़ी सहजता से आप उसमें से निकल जाओ। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हर परेशानी से आप निकल सकते हो। कब? जब आप स्टेबल हो। आप जानते हो जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है और उस समय हम उतावलेपन में हो जाएं, हड़बड़ाहट में हो जाएं, तो हम जो काम समझ सकता है उसको भी बिगाड़। विचारशील व्यक्ति की सबसे बड़ी जो पहचान होती है ना, जो विपरीत परिस्थिति आती है वो ठहर जाता है। बड़ा सुंदर आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। एक बार जापान में किसी महात्मा को, जैन महात्मा होते हैं उधर, जैन महात्मा को बुलाया गया घर पर खाना खाने के लिए और उत्सव की तैयारी की गई। जैसे अभी आपके यहाँ पर स्वर्णलता जी, कल्याणी जी मिलकर एक उत्सव की तैयारी की कि महात्मा जी आएंगे, आप सब भी इकट्ठे हो। अभी ऑनलाइन है, कभी फिजिकली भी ऐसे इकट्ठे हो सकते। तो वो इकट्ठे हुए, जब सब इकट्ठे हुए, 7वीं मंजिल पर मकान था गृहपति का, मकान मालिक का। उसने उत्सव रखा, बहुत लोग इकट्ठे हुए, महात्मा भी आए, भंडारा था। भंडारे में उन्होंने भंडारा हो रहा था तो सब इकट्ठे हुए। तो उन्होंने भंडारे के बीच में अचानक, आप जानते हो जापान में तूफान बहुत आते हैं, तो उसी तूफान में सब भाग पड़े। 7वीं मंजिल थी, भीड़ हो गई, सब भागे, फटाफट भागे। अरे भागो भागो भागो, क्या हुआ? तूफान आ गया। मकान मालिक को ये भी याद नहीं रहा कि मेरे घर पर
जब मकान मालिक बाहर निकलने लगा तो भीड़ को देखकर वापस हुआ कि अरे बाप रे, जाने का रास्ता तो मिला नहीं, अरे वो महात्मा कहाँ गए। वापस आकर देखा तो महात्मा आंखें बंद करके आनंद में बैठे। मकान मालिक ने पूछा, महाराज जी आप नहीं भागे, तूफान आया, 7वीं मंजिल गिरने को थी, भूकंप आया, पूरा गिरने को थी, ये बिल्डिंग हिल रही थी, आप नहीं भागे। बोले भागे, हम भी भागे। बोले कहाँ भागे आप? कहते आप सबको लगता था कि हम यहाँ से बाहर भाग जाएंगे तो भूकंप से बच जाएंगे, क्या जहां आप भाग कर जाते वहां पर भूकंप नहीं था? कहते मेरी पहचान अंदर कहीं हो चुकी है, विचारों से मैंने जान लिया है कि अंदर भी एक हमारे गुफा है जिसमें बैठने पर भूकंप वहां तक नहीं पहुंचता। ठहराव जब जीवन में आ जाता है ना, तो बाहर तो भूकंप आएंगे मगर आपको नहीं छू पाएंगे। कैसे? आप स्टेबल हो, आप सहजता, सरलता में। उस भूकंप के आने से भी आप अव्यवस्थित नहीं होंगे। जब आप विचारों को, अपने जीवन में सुंदर विचारों को बार बार विचारते हो तो वो विचार आपके हो जाते हैं। वो सुंदर विचार जब हमारे हो जाते हैं फिर हमें आसानी से कोई उद्विग्न नहीं कर पाता। कहते महात्माओं को क्या गुस्सा नहीं आता? क्या उनका जो विचारशील लोग होते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता? कहते आता है, मगर कैसे आता है? जैसे पानी की लकीर। हम लोगों को गुस्सा कैसा आता है? जैसे पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर जाती नहीं है और पानी की लकीर ठहरती नहीं। आता है क्योंकि मन तो महात्मा के पास भी है, मगर उसका मन इतना वशीभूत हो चुका है महात्मा के। हम लोग मन के वशीभूत हैं और महात्माओं का मन उनके वशीभूत। महात्मा किसको कहा जाता है? शरीर को नहीं, वस्त्रों को नहीं, विचारों को कहा जाता है। जिसने सुंदर विचारों को अपने जीवन में समाहित कर लिया, सुंदर विचारों को जिसने अपने जीवन के अंदर रोक लिया, सुंदर विचारों से अपने आप को आत्मसात कर लिया, जब पूरी तरह सुंदर विचार लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर, बार बार मनन कर करके, बार बार चिंतन कर करके जिन विचारों को आप हृदय में बिठा लेते हो ना, अपना बना लेते हो, वो आपको फिर अव्यवस्थित नहीं होने देते, आपकी प्रसन्नता को हिला नहीं पाते। आपने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा अंगद का। अंगद ने ऐसा कौन सा विचार लगाया कि उसने जब पांव जमाया तो उसे कोई हिला नहीं पाया। विचार ही तो है। विचारों की शक्ति कितनी महान है, ये अगर हम समझ जाएं, समझ पाएं, तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी। आप बताओ, रस्सी में कभी भी सांप हो सकता है? रस्सी में कभी सांप नहीं होता, कभी नहीं होता। पर रस्सी में भी हमें सांप दिखता है कब? जब हमें भ्रम हो जाता। परेशानियां सिर्फ हमारा भ्रम ही है। परेशानियां हमारे जीवन में ना कभी थी, ना है, ना कभी हो सकती। हम परेशानियों से हमेशा ही दूर थे। एक भ्रम हो गया है जीने का, सही ढंग ना पकड़ने के कारण हम परेशान। गहराई में जाने पर, विचारों की गहराई में जाने पर आप फिर उनमें से चुन पाएंगे कि कौन से विचार मुझे अपने जीवन में अपनाने हैं
और कौन से विचार हमने जीवन में नहीं अपनाते। आप कभी भी किसी दुकान पर जाते हो, कपड़े की दुकान पर जाते हो, हर एक कपड़ा तो नहीं उठा कर ले आते, चुनते हो, ये कपड़ा मुझे चाहिए, ये कपड़ा मेरे लिए सुखकारक है, ये कपड़ा मेरे पर्सनैलिटी के अनुसार मेरे को और ज्यादा शोभा प्रदान करेगा। आप सामान की दुकान पे जाते हो, यहाँ पर राशन की दुकान कह लो, वहां पर भी जाकर आप अपनी पसंद की हल्दी मिर्च मसाला सब अपने मतलब का लाते हो ना, हर चीज तो नहीं उठा कर ले आते। इसी प्रकार हम अगर बड़े समझदार हो जाएं, समझदारी से अपनी विवेक बुद्धि से कार्य लें, तो हम उन्हीं विचारों को चुनेंगे, उन्हीं विचारों को आत्मसात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी हैं। उपयोगी विचार जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत विलक्षण परिवर्तन आते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, ये जो विचारशील लोगों के बीच में आने से पूछा गया क्या फर्क पड़ता है, कहते विचारशील लोगों के बीच में आते आते, विचारशील लोगों के बीच में आते आते तकदीर बदल जाती। कहते फ्रेम, फोटो फ्रेम होता ना, फ्रेम तो वही रहता है मगर अंदर की तस्वीर बदल। आपका बाहर से कोई फर्क नजर नहीं आए। विवेक बुद्धि से विचार करते करते आपके बोलने का, आपके जीने का, आपके व्यवहार का, आपके सोच का ढंग बदल। बाहर से तो आप ऐसे ही दिखेंगे, फ्रेम आपका वही रहेगा, और अंदर की तस्वीर जो हमारी सोचने का ढंग था वो बदल जाए। आप निरभिमान हो जाए, आपका अहंकार कहीं गलित हो जाएगा, आपके संसार से शिकवे हट जाएंगे, शिकायतें हट जाएंगी आपकी। आपको किसी में कोई बुराई नजर नहीं आएगी, आपकी बुराई खत्म हो जाएगी, आपको कहीं बुराई नजर नहीं आएगी। अगर व्यक्ति बुरा होता तो कभी सुधर ना पाता, याद रखें। कोई भी व्यक्ति संसार में कभी भी बुरा नहीं है। बुरा व्यक्ति नहीं है, उसकी आदत बुरी हो सकती। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आदत बुरी सुधार ली बस हो गया भजन। आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी अगर आपने अपनी आदतों को जो बुरी है, अच्छी आदतों को तो पकड़ के रखना है मगर बुरी आदतों को सुधारते चले जाना है विचारों के द्वारा। अपनी वाणी पे संयम लाना है कि मेरी वाणी से कभी कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का मन दुखी हो जाए। मेरी क्रियाओं से किसी को कष्ट ना हो। मेरी आंखें जब देखें सबको प्रेम से देखें, ये कभी क्रोध वाली आंखें ना हो। मेरा बोलना, मेरा सुनना, देखो जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। जब आप सुंदर बातें सुनेंगे, दूसरे को खुशी देने वाली बातें सुनेंगे तो खुशी देने वाली बातें आप बोलेंगे। व्यर्थ के चिंतनों से, व्यर्थ की भाषा से दूर हट जाइए और जो भी सुंदर सुंदर हो उसे ग्रहण कीजिए। जब हमारा चिंतन सुंदर हो जाता है तो हमारा मन सुंदर हो जाता है। जब हमारा मन सुंदर हो जाता है तो हमारा प्रत्येक कार्य सुंदर। हमें कोई बुराई नहीं लगता।
आज हम टिकमार करते हैं, इसके अंदर ये अच्छाई नहीं है, उसके अंदर वो अच्छाई नहीं है। जब हमारा चिंतन सुधरेगा, जब हमारे विचार सुधरेंगे, तो हम ढूंढेंगे इसमें ये वाली बात बहुत अच्छी है, इसके अंदर ये बात बहुत अच्छी है। ये जब भी ये बात कहता है कितनी सुंदरता से कहता है, ये जब भी ये कार्य करता है कितनी सुंदरता से करता है। व्यक्ति बाहरी सुंदरता से सुंदर नहीं हुआ करते। बाहरी सुंदरता हमें किसी को मिली भी नहीं। विचार करके देखें तो क्या हमारे शरीर में से गंदगी ने निकलना छोड़ दिया? क्या आपके नाक के रास्ते से गंदगी नहीं निकलती अब? क्या आपके कान के रास्ते से गंदगी नहीं निकलती? क्या आपकी आंखों के रास्ते से गंदगी नहीं निकलती? क्या आपके उधर से गंदगी निकलनी बंद हो गई है? जब आप विचार करेंगे कि हमारे अंदर सुंदरता तो विचारों की ही है, वरना हमारा शरीर तो गंदा ही। 9 द्वारों से ये गंदगी फेंकती। एक द्वार सुंदर है, वो जगाना हमें आया ही। 2 नेत्रों से हम संसार को खूब देखते हैं। आप जानते हो भगवान शिव के लिए कहा जाता है त्रिनेत्र। तीसरा नेत्र अंदर की तरफ देखता है, याद रखना, इसीलिए वो सामने नहीं। 2 नेत्र तो बाहर देखते हैं, एक नेत्र अंदर देखता है। अंदर के नेत्र को जो सुधार लेता है, अंदर के नेत्र पे जिसकी नजर चले जाती है, उसके जीवन में से फिर बुराइयां पलायन कर जाती। हम जब देखते हैं बाहर देखते हैं, आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं, खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं। जब आप अंदर की तरफ गोता लगाने लग जाएंगे, अपना मंथन करने लग जाएंगे, अपना चिंतन करने लग जाएंगे, उसके बाद हमारा मन जो है वो गलत कार्यों की तरफ जा ही नहीं पाए। जीवन में व्यवस्थित होना बड़ा जरूरी है। प्रसन्नता के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, व्यवस्थित होना है हमें। व्यवस्थित होने से जीवन सुंदर हो जाता है। जीने का सलीका सही आ जाए। आप जानते हो, हम जगन्नाथपुरी में ज्यादा लोग हमें सुन पा रहे हैं, तो आप जानते हो पुरी के पास समुंदर अगर अपनी मर्यादा में रहता है तो उसकी लहरों के पास जाकर खेलना कितना अच्छा लगता है। वही समुंदर अगर अपनी मर्यादा को लांघ जाता है तो सुनामी आती है, ऐसे तूफान उठते हैं। हमने सुना था कि पूरे 1 महीने तक पूरी जगन्नाथपुरी में लाइट नहीं आई। आप समझ पा रहे हैं व्यवस्थित जीवन में कितना आनंद है, और व्यवस्थित जीवन ना हो तो कितना उपद्रव है। हमारा दिमाग ही दिन रात हमें बीमार बनाए रखता है। व्यवस्थित ना होने पे हमारा दिमाग गलत रास्ते पे भागता है, हमारा मन उसके साथ साथ लगा रह जाता है। और व्यवस्थित होने पे फिर हमारा मन ठहराव में होता है, भटकाव खत्म हो रहे होते हैं। और भटकाव ना होने बड़े ही सौभाग्य की। भटकाव जीवन में होने भी नहीं चाहिए। भटकाव कब आते हैं? जब हमारा माइंड व्यवस्थित नहीं। हमने जाना पूर्व में है, जा पश्चिम में रहे हैं। जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तब तक हमारे जीवन की यात्रा भी सही नहीं हो सकती। दिशा सही करिए, अपने आसपास का माहौल सुंदर हो जाएगा। आप जिससे बात करेंगे आपकी बात की मान्यता होगी। आप जानते हैं रिलैक्स माइंड जो है बहुत सुंदर वर्क करता है, और डिस्टर्ब माइंड सुंदरता को हमेशा बिगाड़ के रखता है।
माइंड को रिलैक्स रखना है तो व्यर्थ के चिंतनों को अपने से दूर रखें। जहां पर व्यर्थ के चिंतन नहीं है वहां पर मन हम भी भटका नहीं। विचारों के ओहो में ही जीवन है। हम अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, इस मनुष्य में सुंदरता को बनाकर रखना चाहते हैं, इसका सुंदर तरीका भी यही है कि जीवन को बड़ी सुंदरता से जी। आपके सामने मैंने गिलास, आधा गिलास कांच का पानी का भर के रखा, तो आपसे पूछा जाए तो बहुत लोग कहेंगे कि पानी का गिलास आधा खाली है। ये भी एक विचार है। और बहुत लोग ही कहेंगे कि नहीं, आधा गिलास पानी से भरा हुआ। ये भी एक विचार है। भरा हुआ देखना जहां पर पॉजिटिव है, खाली देखना वही नहीं। हमें इस संसार को सही ढंग से, जब चश्मा सही लगा हुआ है, किसी की आंखें खराब हो जाएं, तो अगर उसके नंबर का चश्मा ना मिले तो उसको सही नहीं दिखता। इसी प्रकार अगर हम विचारों के चश्मे को सही कर लेंगे तो हमें संसार को देखना आ जाएगा यथार्थ दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपको संसार दिखेगा। बुराई का चश्मा लगाकर अगर इस संसार को देखने निकलोगे तो आपको संसार में बुराइयों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अगर वही अच्छाई का चश्मा लगाकर आप इस संसार में निकलोगे तो आपको अच्छाई के अलावा भी कुछ दिखाई देने वाला। अगर हम इस मनुष्य जन्म में आनंदित रहना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस अपने विचारों को संवारते चले जाइए, संभालते चले जाइए और इस संसार से शिकवे शिकायत निकालते चले। ना शिकवा है ना शिकायत है, जो है एक्सेप्ट करिए। फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए। संसार में हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। दो व्यक्ति आपस में गुस्से में आए, अगर आप भी उस गुस्से में साथ में बह गए, आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। उस समय आप अगर शांत हैं तो आप दो लोगों के झगड़े को बड़े प्यार से सुनकर कोई बात नहीं, आप संवार पाएंगे। एक्सेप्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए और कुछ अवॉइड कीजिए। कुछ चीजें अनदेखी भी करनी पड़ती। आप सेट पे गाड़ी लेकर निकले हो, अगर रास्ते में गड्ढे आ गए तो आप उस समय क्या करते? गड्ढे से चुपचाप धीरे से अपनी गाड़ी को निकाल लेते, अपने मन को द्विगर नहीं करते। समझदार व्यक्ति गाड़ी अगर भीड़ में फंस गई तो उस समय अव्यवस्थित नहीं होते, उन पलों को भी कुछ लोग कमा जाते हैं। आप जानते हैं, भीड़ में गाड़ी फंस गई और मन को शांत कर पाना हर कोई नहीं जानता। ज्यादातर लोग उद्विग्न हो जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं। अरे ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। हमारे जीवन में भी अगर हमारे अंदर से बेकार की भीड़ निकल जाए तो बाहर की भीड़ हमें फिर कष्ट नहीं दे पाए। अवॉइड कर, एक्सेप्ट करो जैसा जीवन मिला है, एडजस्ट करो माहौल को देखकर, अवॉइड करो। बस यही जीवन के 3 सुंदर सूत्र हैं कि हमें एक्सेप्ट करना आए, एडजस्ट करना आए, कुछ तो अवॉइड करना। संसार इन 3 मंत्रों को लेकर चले जीवन में और व्यवस्थित जीवन जिए। आपके सभी के जीवन में प्रसन्नता ठहर जाए, आए जाए नहीं। आप सभी के जीवन में विचारों की कृपा से हमारा जीवन
ठहर जाए, फिर अव्यवस्थित ना हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम, शांति शांति शांति। Hello. हरे कृष्ण। Uh, uh, Briefly, just I want to brief the entire session so that more questions will be raised by our learned participants. Guruji began his talk with a very profound question: why we are worried at all? Because we are expecting more, because we are bothering what we do not possess, even we do not deserve to possess that. He further emphasized that whatever we do, we must do it with involvement. Very beautifully, he explained by citing a very common example that working women every day they faced the food that is prepared by the mother and the food prepared by the maid. How food is prepared, that also transmits to the consumer of the food and mold their personalities according to the food. So we further he moves on by making a distinction between Kathni and Karni. We usually speak our children that we should speak the truth. Truth speaking is good, but before the child, we are never hesitating to lying many times. So there is a huge difference between what we say and what we preach. And Guruji emphasized that this gap should be bridged and there should be no hiatus, no gap between what we say and what we do. No doubt, there are challenges in our lives, and again, Guruji said that we must have the courage to overcome it, and we must try to face the challenges, and we must try to overcome it. And very beautifully, Swamiji also said that we should not be controlled by our mind. Rather, we should control our mind. We should not be controlled by our mind. Rather, we should control our mind. That will make us, no doubt, a better human person. And he also cited many examples. And once also, Guruji in his deliberation told that Sangat will have an impact upon all of us. My friends, my situation, my friends also have an impact upon my personality, upon my thought process. No one is bad because everyone is an expression of the divinity. So thoughts, words, deeds, even our body language, all should be proper. बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण गुरुजी दिए जो सब बहुत शिक्षणीय है हम सबके लिए. To be happy is the reach of the individual that Guruji wants to conclude. The whether we will be happy or will not be, that is in our hand. Disciplining our mind is more and more required because our thought process has its impact. That also makes us restless. Calmness of the mind is more important. If something good will happen to us, we should not feel proud. And if something bad will happen to us, we should not feel disturbed. We should not go into depression. So we have to maintain the equilibrium of our mind. So that is possible through Sat Vichara, through Sat Chintan, and through Sat Karma. Then definitely our life will become blissful, anandamaya ho jayega. Thank you, Guruji. Beautifully, every word that you utter, it directly, I think, it directly touched all of us. During this, internally, we are so much restrictions are there because of this pandemic. We are at times I have that feeling, and I also think that all of us have undergone that mindset. We all are at times
we all are depressed. We feel that life becomes no more, life becomes a meaningless one, no more, because so much restrictions are there. Even we are not face to face, we are not able to interact. So your every word, your words of wisdom will definitely again, I can say that again, give us a hope that we can move on and Charaviti, Charaviti. So with this, again, I am thankful to you, Guruji, for all your words of wisdom. And now I request, I see Ranjit sir is there, the senior most member of our philosophy family, the senior member of our family. I welcome you, sir, and I request you to have your observations on this topic. Sir, please. Hello, Ranjit sir. Hello. 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 Sir, namaskar. Sir, please. Namaskar. Hello. Yes. Thank you, Dr. Sarangi. We are definitely been benefited by. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, So- please go ahead. We are definitely enlightened by Swamiji's speech, and as he's saying that we have to internalize ourselves so that we can link ourselves with the external world. So this internalization, this is what I have got from his version of speech, that as he's saying that if we can internalize the external world within us, then our outlook about the external world will change. So in that way, we can attain happiness. So this, I don't want to go into the detail, because this is probably what I could get from him. He may respond this if he thinks so. अगर हम अंतर्दृष्टि का ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेंगे, तब जाके हम हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा पहचान सकेंगे, और दैट विल बी द बेस्ट वे इन व्हिच वी कैन अटेन हैप्पीनेस. सो आपका विचार इस पर क्या है, आप बताइए हमको. थैंक यू. Hello, Guruji, you want to respond to Ghosh sir? Hello. He is speaking but not audible. हाँ सर ठीक कुहंतु अपन. Guruji, your voice is not audible to all of us. Hello. Guruji, you are not audible. Okay, I am responding on behalf of Guruji. Okay, sir. Sir, please go ahead. Guruji very beautifully spoke that the food we take that becomes our body, the thoughts we think that becomes our minds, the way we live that becomes our personality. So we should decide which type of a food we should take, which type of thought we should think, and which way of life we should live. The choice is ours. He gave the example of a grocery shop, the stationery shop.
where everything is available to purchase, but we buy according to our choice, according to our likes and dislikes. So man is endowed with freedom. So here freedom is the process, and the ultimate goal of life is also freedom. So by freedom we attain freedom. If this benefit is with us, then there is no question of suffering. We suffer because of our limited thoughts, because of our misuse of thoughts, because of our wrong choices. So, as Ranjit Ghosh sir said, if we focus on our internal personality, or if we internalize everything, then that will be manifested in our external personality. That's true. And that is also said by Swamiji, and we all agree with Ranjit Ghosh sir. Thank you. Thank you, Ranjit sir and Pramod sir. Now I request Shravani Mishra madam. Shravani Mishra madam, are you there? Hello? Shravani Mishra. Yes, Shravani Mishra madam, please moderate the session and request KC Patnaik sir and others to have their observations. Madam, please. Namaskar to all intellectuals present here. Really, I am very much enlightened speech of Swami Radhachandra. Now, his speech, relating to speech, thoughts, all are very useful for our day-to-day life to make our personality more and good. One thing, good thoughts, good mind, and good personality. All those related. That is very much interesting in his talk. Now, veteran member, KC Patnaik sir, to provide his observation or provide his relating to the speech of Swami. Sir, KC Patnaik sir, are you here? KC Patnaik sir, can you please say something about the presentation made by Swamiji? Madam, otherwise you request Pramod sir and K. Om Narayan sir, if he is present, you request them. Yes, Okay, madam. because yeah, I told. I gave my response. Yes, So it is over to Dr. Rao. sir. okay. Sir, please unmute and tell something about the presentation. Sir, Undaran sir, are you here? Okay, if he is not ready to speak, And then, so we should conclude the session here. okay. So it is time to start the next session. Am I audible? Yes, sir, please. It was very enlightening talk. The basic thing is that what is your inherent feeling or attitude toward the objects of the world that you come across and you experience. That is the basic thing. The thing is that you enjoy the freedom of happiness if you don't do what feel like doing. That means you should not be controlled by the mind. You feel like doing well, the impulses you act. You should act on the intelligence, how you should act in the given situation and when you come at contact with the objects of the world. That is it. He has given certain examples, and that is the basic theme of the subject. I don't want to elaborate and waste most of time. This is the basic principle of life, and that is very well explained. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Thank you, Shravani madam.
for moderating the first session. And without wasting much of our time, let's move on to the second session. We all are thankful to